బ్రిటన్లో భారత ప్రధాని మోడీ బ్రిటన్ ప్రధాని డేవిడ్ క్యామరూన్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నట్లు లైవ్ చూద్దాం. The first ever government-backed rupee-denominated bond to be issued internationally. We want British companies with their world-class consulting, project management and engineering skills to help you plan, design and build these new cities. So I'm delighted we've agreed a new 5-year partnership to develop 3 cities, Amaravati, Indore and Pune. We want UK and Indian scientists to work together to develop the low-cost, low-carbon energy that's vital for the future, and that's why we're establishing a new £10 million joint research collaboration into new technologies. We want our companies to truly make in India, and that's why we're reinvigorating our forum of business leaders who we'll see tomorrow. Second, we've agreed to establish a stronger, broader defence and international security partnership. All countries have a right to self-defence, and we want to assist India, the world's largest defence importer, to modernise her capabilities. We'll establish a new government-to-government framework to help make this happen. This will also mean increasing cooperation on new technologies and new capabilities like cyber, like our aircraft carriers too. We will deploy a Royal Navy warship to the Bay of Bengal next February to take part in India's first major international gathering of warships for a number of years. And we'll work together to better protect ourselves from new and emerging threats, such as cyber attacks, with the UK helping to establish a new centre to train 1 million Indian cybersecurity professionals and offering assistance to set up a new Indian cybercrime unit. Finally, as global powers with a global outlook, we discussed what more we can do to solve the challenges we face. The UK firmly supports permanent membership for India on the United Nations Security Council. International institutions need to reflect the world as it is today in order to maintain relevance and to support the rules-based system that benefits us so much. Today we agreed on the vital importance of securing an ambitious global deal in Paris later this year that keeps our goal of limiting global warming by 2050 to 2 degrees within reach. And we discussed what more we can do to support free trade, in particular by accelerating talks on a free trade deal between the EU and India, which could benefit more than 1.7 billion people and be worth over £15 billion each year to the EU and India combined. So we've had some excellent discussions here today, and I look forward to more this evening and, of course, tomorrow as well. We both have big ambitions for the relationship between our countries. We want a modern, essential partnership founded on old ties, but defined and fuelled by the modern, diverse, dynamic countries that we are both today. Thank you. Prime Minister Modi. Thank you, Pradhan Mantri ji. प्रधानमंत्री श्री कैमरन, मीडिया के सभी साथियों, प्रधानमंत्री कैमरन अपने भारत और ब्रिटेन के संबंधों के प्रति जो उत्साह और आशावादी दृष्टिकोण दिखाया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपने भारत और ब्रिटेन के संबंधों को सशक्त करने में बड़ा योगदान दिया है। मैं आपके गर्मजोशी से भरे स्वागत और भारत यूके संबंधों को सशक्त बनाने के आपके योगदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपके निमंत्रण के लिए, आपके आदर सत्कार के लिए, जिस प्रकार से आपने मेरे लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यूके की यात्रा यहां पर आने से पर मुझे बहुत प्रसन्नता है। यह संबंध भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक तौर पर हम एक दूसरे के भलीभांति परिचित हैं। हमारे लोगों के बीच संबंध अतुलनीय है। हमारे मूल्य एक समान है और इससे हमारे संबंधों को विशेष स्वरूप मिला है। हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी वाइब्रेंट है और हमारे संबंधों में निरंतर विस्तार हो रहा है, जैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी,
शिक्षा और विज्ञान, क्लीन एनर्जी और स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, कला और संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साझे हित हैं, जो हम दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। आज हमने निर्णय लिया है कि हम अपने पॉलिटिकल डायलॉग को और घनिष्ठ बनाएंगे और नियमित रूप से बायलैटरल समिट करेंगे। हमारे साझे मूल्यों के आधार पर विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी विकास के लिए साझेदारी को शुरू करेंगे और साथ ही साथ हर क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक गहरा बनाएंगे। आज हमने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हमारे आपसी विश्वास का प्रतीक है और हमने क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए हमारे दृढ़ संकल्प का परिचय भी दिया है। भारत के ग्लोबल सेंटर फॉर क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में सहयोग पर समझौता हुआ है। इससे वैश्विक न्यूक्लियर इंडस्ट्री में सेफ्टी और सिक्योरिटी और मजबूत होगी। यूके के साथ रक्षा और सुरक्षा को हम बहुत मूल्यवान मानते हैं, जिसमें डिफेंस ट्रेड और नियमित ज्वाइंट एक्सरसाइज भी शामिल है और यह साझेदारी निरंतर बढ़ती रहेगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि फरवरी 2016 में भारत में होने वाली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में यूके भी शामिल होगा। भारत डिफेंस के आधुनिकीकरण पर बल दे रहा है और इसके लिए हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मेक इंडिया के मिशन में प्राथमिकता दे रहे हैं। मेरा विश्वास है कि यूके हमारे इस मिशन में एक महत्वपूर्ण साझेदार होगा। इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमारे संबंधों का एक अहम और मजबूत स्तंभ है। मेरा विश्वास है कि ये संबंध आने वाले समय में बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत में अपार संभावनाएं हैं और ब्रिटेन में आर्थिक क्षमता और सामर्थ्य है। यूके भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत यूके में जितना निवेश करता है वो बाकी ईयू देशों में निवेश से अधिक है। भारत में यूके के निवेश के प्रस्ताव के लिए हमने भारत में एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म की व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया है। हम इंडिया यूके सीईओ फोरम के पुनर्गठन का स्वागत करते हैं। लंदन के फाइनेंशियल मार्केट का फंड रेज करने के लिए हम और अधिक प्रयोग करने वाले हैं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हम भारतीय रेल के लिए लंदन में रेलवे रूपी बॉन्ड जारी करने जा रहे हैं। यह एक तरह से स्वाभाविक है कि भारतीय रेल की यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। अगले 2 दिनों में हमारे बिजनेस सेक्टर के साथ होने वाली एंगेजमेंट्स का मैं उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा हूं और हम बिजनेस सेक्टर से कई महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स की अपेक्षा करते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों में के बीच क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट सहयोग में प्रगति हुई है। यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भी है और इसमें अपार संभावनाएं भी हैं। भारत ने क्लाइमेट चेंज पर जो एक व्यापक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजना बनाई है, उसमें हमारे द्विपक्षीय सहयोग से लाभ पहुंचेगा। हम आशा करते हैं कि पेरिस में होने वाले सम्मेलन में यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के फ्रेमवर्क के अंतर्गत ठोस परिणाम निकलेंगे और विश्व सस्टेनेबल
और लो कार्बन भविष्य के लिए एक निर्णायक रास्ता तय होगा। आज कई और क्षेत्रों में ठोस परिणाम निकले हैं जिसका भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकता से संबंध है। इनमें स्मार्ट सिटीज, स्वास्थ्य, रिवर क्लीनिंग, स्किल और शिक्षा शामिल है। हम इस बात पर सहमत हैं कि सभी क्षेत्रों में हमारी साझेदारी के लिए टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन मजबूत नींव प्रदान करेंगे। हम दोनों देश अपनी इस साझेदारी से जनता के लिए नए अवसर पैदा करेंगे और समृद्धि बढ़ाएंगे। साथ ही साथ साझे हितों को प्राप्त कर पाएंगे और अपनी चुनौतियों का ठीक से सामना कर सकेंगे। जैसे एशिया में शांति और स्थिरता, विशेष करके दक्षिण और पश्चिम एशिया में सामुद्रिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा आतंकवाद और अतिवाद, इन सभी विषयों पर मैं और प्रधानमंत्री कैमरॉन आज और कल चेकर्स में और विस्तार से बात करने वाले हैं। अंत में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजन में भारत की सदस्यता के लिए ब्रिटेन के महत्वपूर्ण सामर्थ्य के लिए प्रधानमंत्री कैमरॉन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज पार्लियामेंट में संबोधन करने का मुझे सम्मान मिला है। उसके बाद मैं इंडिया यूके बिजनेस समिट को संबोधित करूंगा। इन दोनों अवसरों पर भारत और भारत ब्रिटेन संबंधों पर विस्तार से अपने विचार प्रकट करूंगा। हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए आज हमने एक बोल्ड और महत्वाकांक्षी विजन रेखांकित किया है और जो निर्णय हमने आज लिए हैं यह इस विजन को पाने के हमारे दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज के परिणामों से ये स्पष्ट होता है कि हमारे संबंध नई और ऊंचाइयों पर आज ही पहुंच चुके हैं। थैंक यू। Thank you very much indeed, Prime Minister. We've got, I think we'll start with a British question from the BBC. एक प्रश्न BBC की Justin तरफ Road से। up from the BBC. Prime Minister Cameron, you've visited India 3 times Minister Cameron, since you came to आप power. Why has it taken so long to get a return visit? आपको And Prime Minister Modi, India is becoming an increasingly intolerant place. Why? इंडिया एक But let me answer your question. Actually, India is not only the first major country I visited as Prime Minister. భారత్ బ్రిటన్ సంబంధాల బలోపేతానికి కృషి చేస్తాం, అలాగే ఇండియాలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు బ్రిటన్ సిద్ధంగా ఉందని బ్రిటన్ ప్రధాని క్యామరూన్ అన్నారు. అలాగే వారు చూపిస్తున్న ఆదరాభిమానాలకు ప్రధాని మోడీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.